Hello students, I hope you all doing good at home. Yes, so here I'm Radhi Bawan, Assistant Professor BBA in St. Andrews Institute of Technology and Management, Gurgaon. So here I'm back with an online lecture series on income tax subject. So let's start the lecture. Yes, see in today's lecture we are going to cover next topic of your third unit, that is clubbing of income. Okay. So first of all, question arises that what is the meaning by clubbing of income? What is the meaning by clubbing of income? So see, clubbing of income means including the income of any other person in SSC's total income. If the any income of other person is included in SSC's total income, SSC's means the person who will pay the tax. Okay? The person on which tax is chargeable. Okay, so the any income of any other person is included in SSC's total income, then this income will be known as clubbing. This process will be known as clubbing of income. But ये क्यों, मतलब ऐसा क्यों कि किसी दूसरे पर्सन की इनकम एसएससी के इनकम में क्यों इंक्लूड करी जाएगी? So let's see. The Income Tax Act has specified certain cases when income of one person is legally required to be included in the income of another person. If some conditions are satisfied, this inclusion is known as clubbing of income. So if there is some specified conditions, there is a specified condition declared by the income tax department that if such conditions occurs or such cases if occurs, then legally that income should be included or must be included in the person's included in the hand of the person of another person, sorry, will be included in another person. तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक केसेस दिए गए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कि कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें एक पर्सन की इनकम को दूसरे पर्सन मतलब एसएससी की हैंड में इंक्लूड करना चाहिए, दूसरे पर्सन की इनकम में इंक्लूड करना चाहिए. सो कौन से ऐसे केसेस हैं, लेट्स सी आप एक एग्जांपल से समझ पाएंगे. लेट्स हैव एन एग्जांपल. तो सी, if a husband transfer his some part of income to his wife to reduce tax burden, then such transferred income will be taxable in husband's income. तो सी, आपने जनरली देखा होगा आपके पेरेंट्स के, आपको पेरेंट्स को भी देखा होगा आपके फादर क्या होते हैं, कई बार अपना इनकम टैक्स बचाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अपनी प्रॉपर्टी, कुछ जैसे प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी परचेज करिए, कुछ पार्ट ऑफ इनकम अपनी वाइफ को ट्रांसफर कर देते हैं इन डॉक्यूमेंट्स ओनली. जैसे आपके फादर ने कोई एसेट्स परचेज करी, कोई फ्लैट परचेज किया और उसको फ्लैट को आपके मदर के नाम पे लिया. ओके, डॉक्यूमेंट में जो जिसके नाम पे है वो है आपकी मदर के नाम पे कोई एसेट्स परचेज करी. नाउ आपके फादर ने ऐसा किया क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स बचाने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो आपके फादर की इनकम में होता, आपके फादर ने अपने नाम से परचेज किया होता तो उसके ऊपर टैक्स लगता. बट योर मदर इज हाउस वाइफ और आपकी मदर के ऊपर कोई भी टैक्स चार्ज नहीं होता है, तो इसलिए उनके नाम पे कितनी भी प्रॉपर्टी हो कोई टैक्स की चार्ज नहीं होगा. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स को की चोरी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई पर्सन दूसरे पर्सन को अपने कोई एसेट और इनकम पार्ट ऑफ इनकम ट्रांसफर करता है, तो उस केस में वो इनकम जिसने ट्रांसफर किया है, जिसका इंटेंशन टैक्स को चोरी करना है, उसी के हैंड में टैक्सेबल माना जाएगा. ओके, यस. तो दिस इज द क्लबिंग ऑफ इनकम. ऐसे आप जो इनकम एक पर्सन की इनकम दूसरे पर्सन के हैंड में क्लब कर दो, दैट इज कॉल्ड क्लबिंग ऑफ. ओके, yes. Now what are the provisions of clubbing of income? So see provisions regarding clubbing of income. First provision is section 60. It is transfer of income without transferring assets. If you transfer some assets, any assets without transferring any transfer of income without transferring of any assets. So if you transfer any assets without transferring the income. So suppose आपके फादर ने क्या किया, आपकी मदर के नाम पे एक फ्लैट ले लिया, लेकिन उसकी जो इनकम होने वाली उसकी रेंटल इनकम जो है, वो रेंटल इनकम तो वो आपकी मदर को देते ही नहीं, वो अपने पास रखते हैं. तो बिना इनकम को ट्रांसफर करे हुए सिर्फ क्या कर दिया, एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया. या फिर सॉरी, एट द सेम टाइम कि आपके फादर का कोई फ्लैट है, आपके फादर के नाम पे कोई फ्लैट है, बहुत पुराना दिया हुआ है, अब उसकी जो रेंटल इनकम उसके ऊपर आपके फादर ने टैक्स दे रखा है, लेकिन अब उस हाउस प्रॉपर्टी से उस फ्लैट को रेंट पे देने की वजह से जो इनकम हो रही है, उस इनकम को क्या कर रहे हैं आपके फादर, कहाँ दिखा रहे हैं, आपकी मदर की इनकम दिखा रहे हैं कि रेंटल इनकम भी आपकी मदर दे रही है. ओके, उनकी वाइफ मतलब या कोई और भी पर्सन हो सकता है. सपोज कोई
कोई और पर्सन हो सकता है, लाइक जैसे आपके फादर के ब्रदर है, ठीक है, या मैं अपनी बात करूँ, मेरा कोई ब्रदर है, मेरे क्योंकि मेरे मेरे ब्रदर की इनकम इतनी नहीं है, तो मेरे ब्रदर की इनकम टैक्सेबल नहीं है, बट मेरी इनकम ज्यादा है, मेरी इनकम पे टैक्स लगता है। तो मैंने क्या किया, जो मेरा फ्लैट है जो मैंने रेंट पे दे रखा है उसकी इनकम मैंने क्या किया, अपने ब्रदर को दिखा, शो कर दिया कि मेरे ब्रदर की इनकम, मेरी रेंटल इनकम तो मेरा ब्रदर लेते हैं, क्योंकि उसके पास इनकम नहीं, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो वो यही उसका सोर्स ऑफ इनकम है। और उसके उसकी इनकम तो टैक्सेबल स्लैब में आती नहीं है, तो उसके ऊपर तो टैक्स लगेगा नहीं। तो ना मेरे ऊपर टैक्स लगा, क्योंकि मैंने ट्रांसफर किसको कर दी वो इनकम, अपने ब्रदर को, और मेरे ब्रदर के ऊपर वैसे इसलिए टैक्स लगा क्योंकि टैक्स की स्लैब रेट में आता ही नहीं, क्योंकि इसकी इनकम इतनी नहीं है, इसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए। तो मैंने क्या किया, फ्लैट तो मेरा ही है, मेरे नाम पे ये फ्लैट, लेकिन मैंने बिना फ्लैट को ट्रांसफर करे हुए इनकम ट्रांसफर कर, तो उस कंडीशन में जो रेंटल इनकम है वो किसके हाथ में टैक्सेबल होगी, मेरे हाथ में, क्योंकि मेरा इंटेंशन क्या था, अपने टैक्स की चोरी करना, टैक्स को बचाना। So if a person transferer, which is who is transferer, a person who is transferer transfer his income to another person, that's transferring, without transfer of any assets, then such income will be taxable in the hands of transfer. जो ट्रांसफर करेगा उसी के हैंड में इनकम टैक्सेबल है। Okay. The next section is section 61. Like what does section 61 says? Revocable transfer of assets. If a person transfer revocable transfer of assets to another person, such assets shall be taxable in the hands of transfer. Okay? अगर कोई पर्सन, एक पर्सन दूसरे पर्सन को कोई रिवोकेबल ट्रांसफर करता है एसेट्स का, तो दैट रिवोकेबल ट्रांसफर से जो भी इनकम होगी, उस एसेट से जो भी इनकम होगी, विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफर। अब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड दैट रिवोकेबल ट्रांसफर? व्हाट इज दिस रिवोकेबल ट्रांसफर? व्हाट इज द रिवोकेबल ट्रांसफर? तो रिवोकेबल ट्रांसफर ऐसे ट्रांसफर होते हैं जो आपकी पूरी लाइफ में या उस एसेट्स की लाइफ में कभी भी रिवोक हो सकते हैं, कभी भी ब्रीच भी लग सकते हैं। Revocable transfer की definition. Revocable transfer meaning a transfer which will be considered revocable if such transfer contains any condition or provision to retransfer during the lifetime. If such transfer gives the right to transferor to reassume power during the lifetime of the beneficiary. तो आपने आपका ट्रांसफर ऐसा ट्रांसफर है जिसको आप ट्रांसफरर उसकी लाइफ में कभी भी वापस ले सकते हैं। मैंने अपने अपनी एसेट्स अपने भाई को ट्रांसफर कर दिया, अपना फ्लैट अपने भाई को ट्रांसफर कर दिया, नीचे एक कंडीशन लगा दी। एक कंडीशन मैंने क्या लगा दी कि मैं इस एसेट्स को कभी भी अपनी, जब मेरा मन चाहे पूरी लाइफ टाइम में मैं कभी भी वापस ले सकता हूँ। ओके, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, रिवोकेबल कॉन्ट्रैक्ट, रिवोकेबल ट्रांसफर, तो जिसको कभी भी रिवॉक किया जा सकता है, कभी भी ये ट्रांसफर ब्रीच हो सकता है, एग्रीमेंट ब्रीच हो सकता है, और मैं अपनी एसेट्स वापस दे सकता हूँ। ओके, so this is called revocable transfer. So if there is any revocable transfer of assets to any person, okay, then in that case any income from such assets will be taxable in the hands of transferor. Although आपने वो assets किसको ट्रांसफर कर दिया, मैंने अपनी assets अपना फ्लैट अपने भाई को ट्रांसफर कर दिया, लेकिन फिर भी उस एसेट से जो भी इनकम होगी उसके हैंड में टैक्सेबल होगी, मेरे हैंड, जैसे कोई भी रेंटल इनकम होगी वो मेरे इनकम में इंक्लूड होगी टैक्सेबिलिटी, ना कि ब्रदर की। क्यों? क्योंकि मेरा ट्रांसफर क्या है, रिवोकेबल है। उसमें मैंने एक कंडीशन ये लगा दी कि दिस ट्रांसफर इज रिवोकेबल, दैट मींस अपनी पूरी लाइफ में मशीनरी की पूरी लाइफ, फ्लैट की पूरी लाइफ में कभी भी इसको वापस ले सकती हूँ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन 62। तो इफ ट्रांसफर इज इररिवोकेबल, नो क्लॉज। अगर ट्रांसफर इररिवोकेबल है, इररिवोकेबल मतलब पूरी लाइफ टाइम में कभी भी मैं उस फ्लैट को वापस नहीं लूंगी, कभी भी इस एग्रीमेंट का ब्रीच नहीं होगा, ये हमेशा के लिए मैंने अपने ब्रदर को दी। इस कंडीशन में अगर ब्रदर उस एसेट से कोई इनकम अर्न करता है तो मेरे हाथ में टैक्सेबल होगी, कोई क्लबिंग नहीं होगी, मेरे हाथ में क्लब नहीं होगी, वो इनकम किसके हैंड में, किसके लिए टैक्सेबल होगी, मेरे भाई के। ओके, तो नो क्लबिंग विल बी देयर। Irrevocable transfer means when any assets transferred by one person to another person for lifetime, then this will be known as irrevocable transfer. पूरे lifetime के लिए आपने assets transfer कर दिए, that is called irrevocable transfer. Okay. Then section 64. Income of individual to include income of spouse, minor child, etc. Spouse means if we are talking about men, that means his wife. Okay, and we are talking about an individual that is female, then that is her husband. Spouse means her husband. Okay, so income of individual to include income of spouse, minor child, etc. So see,
Remuneration of spouse of an individual receives salary, any other remuneration commission fees for a company in which individual has substantial interest. Such income and salary remuneration commission will be taxable in the hands of individual. अगर कोई एक इंडिविजुअल है, सपोज कोई एक पर्सन है मिस्टर एक्स, उनकी वाइफ है मिसेज एक्स को कुछ कमीशन का कुछ सैलरी अमाउंट रिसीव हो रहा है, कहाँ से? ऐसी कंपनी से जिसमें मिस्टर एक्स उनके हस्बैंड मतलब मिस्टर एक्स का जिसमें जिस कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, उस कंपनी से अगर उनकी वाइफ को कुछ सैलरी कोई रेम्युनरेशन कोई कमीशन मिल रहा है, तो उनकी वाइफ के हैंड में टैक्सेबल नहीं होगा। किसके हैंड में टैक्सेबल होगा? मिस्टर एक्स के लिए टैक्सेबल होगा। वो अमाउंट मिस्टर एक्स की टोटल इनकम में इंक्लूड होगा और मिस्टर एक्स के लिए टैक्सेबल होगा। ओके, टैक्स किसको पे करना पड़ेगा? मिस्टर एक्स। जो मिस्टर एक्स के ऊपर टैक्स की रेट लगती है उसी रेट से उस इनकम पे भी टैक्स लगेगा। जबकि वो इनकम रिसीव किसको हो रही है? स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, मिसेज एक्स को रिसीव हो रही है, लेकिन फिर भी किसके लिए टैक्सेबल होगी? इंडिविजुअल के हैंड में टैक्सेबल होगी। नाउ देयर इज सम एक्सेप्शन ऑफ this rule. So see what is the exception. There shall be no clubbing of income if the salary, commission, fees or remuneration received from any concern due to spouse technical, professional qualification, knowledge or experience. If such salary, remuneration or commission received by the spouse due to his technical knowledge or experience or qualification, or is doing any work over there, is providing any technical services, then in that case, that income will be taxable in the hands of wife itself or for spouse itself. अब जैसे मेरे को हमने बात करी मिस्टर एक्स को इस कंपनी से जिसमें मिस्टर एक्स का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, उस अभी हम देखेंगे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट क्या होता है, बट अभी के लिए समझते हैं ऐसी कंपनी जिसमें मिस्टर एक्स का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, उस कंपनी से अगर मिसेज एक्स को कुछ इनकम रिसीव हो रही है तो वो किसके हैंड में टैक्सेबल होगी? मिस्टर एक्स के इनकम में क्लब होगी और उनके हैंड में टैक्सेबल होगी। बट इस रूल का कुछ एक्सेप्शन, अगर मिसेज एक्स को उस कंपनी से इसलिए सैलरी मिल रही है कि मिसेज एक्स के पास टेक्निकल नॉलेज है, वो उनके पास क्वालिफिकेशन है, वो एक इंजीनियर है और वो उस कंपनी में काम करती है। उस काम करने की वजह से उनकी सर्विसेज प्रोवाइड करवाने की वजह से सर्विसेज प्रोवाइड कर दी होगी, इसकी वजह से सैलरी मिल रही है, रेम्युनरेशन मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, फीस मिल रही है, तो उस केस में मिसेज एक्स के हैंड में ही वो इनकम टैक्सेबल होगी, मिस्टर एक्स के हैंड में टैक्सेबल नहीं होगी। तो नो क्लबिंग विल बी देयर। Okay, now what is substantial interest rate? In the case of company, if individual along with his relatives hold not less than 20% of equity, अगर ऐसा इंडिविजुअल जो अपनी फैमिली के साथ खुद और प्लस उसकी फैमिली सबका मिला के उस कंपनी में वो पर्सन 20% एटलीस्ट 20% इक्विटी शेयर होल्ड करता है। और इन द केस ऑफ अदर, if individual along with the relatives hold at least 20% प्रॉफिट ऑफ द राइट, और कंपनी के अलावा अदर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई फॉर्म है, कोई पार्टनरशिप फॉर्म है, कोई सोल प्रोप्राइटरी है, तो उसमें अगर आप प्लस आपकी फैमिली पूरा सब कुछ मिला के अगर आप उस कंपनी उस फॉर्म में 20% का प्रॉफिट राइट रखते हैं, उस कंपनी उस फॉर्म से आपको 20% का प्रॉफिट मिलेगा, एटलीस्ट 20% का, तो फिर आप दैट मीन्स आपका उस फॉर्म में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। तो ऐसी कोई कंपनी जिसमें आपका एटलीस्ट 20% इक्विटी शेयर होल्डिंग है, that means you have to substantial interest in that firm. And just talk about any firm or any sole proprietor. If you have 20% profit right in any sole proprietor or any firm, that means you have substantial interest in that firm or that sole proprietor. Okay. Now here we mentioned that you plus your relatives. So in relatives, who will be included? In relatives, spouse will be included, brother and sister included, any legal ascendant and descendant of individual will be included. So in relatives, for this point of view, for substantial interest point of view, relatives include spouse. If we are talking about male, that means wife of that male, and if we are talking about female, that means spouse of that is her husband. Okay, so spouse, brother and sister, any legal and ascendant and descendant of individual. If you have any meaning of the legal hair, then that will also include in relative.
इनकम विल बी टैक्सेबल और क्लब इन द ट्रांसफर इनकम। लेकिन इसका भी कुछ एक्सेप्शन, इस प्रोविजन से कुछ एक्सेप्शन थी। इफ ट्रांसफर इज फॉर एडुकेट कंसिडरेशन, 10 लाख की एसेट्स है, आपके फादर ने आपकी मदर को 10 लाख की एसेट्स ट्रांसफर करी और उस 10 लाख की एसेट्स के बदले कंसिडरेशन ले 10 लाख रुपए ले लिए उससे, 10 लाख रुपए की एसेट्स ट्रांसफर करके 10 लाख रुपए आपकी मदर से ले लिए, देन इन दैट केस इट्स ओके। और अब एसेट से होने वाली इनकम आपके फादर के हेड में टैक्सेबल होगी, तो किसके हेड में टैक्सेबल होगी? आपकी मदर के हेड में, क्योंकि वो एसेट्स के बदले आपके फादर ने एडुकेट कंसिडरेशन या प्रॉपर कंसिडरेशन। ओके, एडुकेट मतलब प्रॉपर। यस, ट्रांसफर इज अंडर एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। अगर आपके जो भी स्पाउस है, जो भी हस्बैंड वाइफ है, वो अलग अलग हो चुके हैं, डिवोर्स हो चुके हैं, किसी की उन्होंने डिसीजन लिया है कि वो अलग अलग है, बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि वो अलग अलग है, इस कंडीशन में अगर आपको एसेट देते तो फिर आपके हाथ में टैक्सेबल। इफ द रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड वाइफ डजंट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, आपने जब ये ट्रांसफर करा है तो उस टाइम पे अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता तो भी क्लबिंग नहीं होगी, तो भी ये इनकम किसके हैंड में टैक्सेबल होगी? जिसकी वो एसेट्स है, जिसको ट्रांसफर हुई है। जैसे वाइफ को अगर आपने ट्रांसफर करी तो वाइफ के हैंड में टैक्सेबल होगी, तो क्योंकि आपके बीच में ट्रांसफर वाले दिन हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, यस। नाउ नेक्स्ट प्रोविजन इज क्रॉस ट्रांसफर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रॉस ट्रांसफर? क्रॉस ट्रांसफर सी, देखिए लोगों ने क्या सोचा कि भाई वाइफ को अगर हम कोई भी एसेट्स ट्रांसफर करेंगे, कोई भी इनकम ट्रांसफर करेंगे, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोल दिया कि सीधा सीधा तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल होगा, हमको कोई मतलब नहीं तुम्हारी वाइफ। तो लोगों ने क्या तरीका निकाला अपने टैक्स को बचाने के लिए? दो लोग आपस में मिले, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे। तो मिस्टर एक्स ने बोला कि अगर मैं अपनी इनकम बचाना चाहूँ, अपनी इनकम पे टैक्स बचाना चाहूँ, तो अपनी इनकम अपनी वाइफ को टैक्सेबल करूँ, तो इसका तो इनकम टैक्स में प्रोविजन डाल दिया कि नहीं, वो आपके हाथ में टैक्सेबल है। तो क्यों ना हम ऐसा करें, मिस्टर एक्स ने बोला कि मैं आपकी वाइफ को ट्रांसफर कर देता हूँ, आप मेरी वाइफ को ट्रांसफर, मैं 5,000 रुपये हर महीने आपकी वाइफ को ट्रांसफर कर दूंगा, तो आप 5,000 रुपये मेरी वाइफ को ट्रांसफर कर, ट्रांसफर भी हो गया, वाइफ को भी नहीं हुआ, खुद की वाइफ को नहीं हुआ, दूसरे की वाइफ को आप कर रहे हो ट्रांसफर। तो दिस इज कॉल्ड क्रॉस ट्रांसफर। तो इसका भी इनकम टैक्स में प्रोविजन निकाल दिया। इफ एनी पर्सन ट्रांसफर एनी एसेट्स टू द स्पाउस ऑफ सम अदर पर्सन एंड सच अदर पर्सन हैज ट्रांसफर द एसेट्स टू द स्पाउस ऑफ फर्स्ट पर्सन, इन दिस केस क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई। तो इस कंडीशन में भी क्लबिंग इनकम अप्लाई होगी कि आपने इंडिविजुअल फर्स्ट जो है उसने सेकंड इंडिविजुअल की स्पाउस को अगर कुछ दिया है, एसेट्स ट्रांसफर करी है, तो इस एसेट्स पे जो भी इनकम होगी किसके हेड में टैक्सेबल होगी? इस इंडिविजुअल के हेड में, क्योंकि इसने क्या किया है, इसने ट्रांसफर किया इस पर्सन। ओके, और अगर सेकंड इंडिविजुअल ने फर्स्ट इंडिविजुअल की स्पाउस को अगर एसेट्स ट्रांसफर किया है, तो इस एसेट्स से होने वाली इनकम किसके हेड में टैक्सेबल होगी? इस इंडिविजुअल के हेड में, क्योंकि इसने एसेट्स ट्रांसफर करी है किस क्या इंटेंशन से? इन इंटेंशन टू सेव द टैक्स को सेव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ट्रांसफर हुआ है, टैक्स की चोरी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। नो, if transfer assets is invested in the business by spouse, then income from such business will be clubbed in the income of transfer to the following extent. अगर स्पाउस ने क्या किया है इस क्रॉस ट्रांसफर के केस में, आपने मिस्टर एक्स के स्पाउस को कर तो दिया है ट्रांसफर, और इस स्पाउस ने क्या किया, ऐसी एसेट्स को बिजनेस में लगा दिया, बिजनेस में यूज कर दिया, तो अगर उस बिजनेस से कुछ इनकम होगी तो वो इस पर्सन के हाथ में टैक्सेबल होगी, लेकिन पूरी की पूरी नहीं होगी। कितना होगी? तो क्वांटम ऑफ क्लबिंग विल बी, द क्वांटम ऑफ क्लबिंग विल बी इनकम फ्रॉम बिजनेस, आप कैलकुलेट करेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस, उसमें से अमाउंट इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ एसेट्स ट्रांसफर एंड टोटल इन्वेस्टमेंट एंड ट्रांसफर इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। इस टोटल इनकम जो आपने टोटल इन्वेस्टमेंट किया उससे हुई है, उसमें से कौन सा वो वाला अमाउंट आप लिखेंगे जो आपने इन्वेस्ट किया है उस एसेट से जो आपको ट्रांसफर करी गई। ओके, जो मिस्टर वाई ने आपको एसेट्स ट्रांसफर करी, उससे आपको कितना इनकम हुई है वो आपको कैलकुलेट करनी है। सो दिस फॉर्मूला विल अप्लाई, इनकम फ्रॉम बिजनेस, होल इनकम फ्रॉम बिजनेस मल्टीप्लाई बाय अमाउंट इन्वेस्टेड आउट ऑफ एसेट्स ट्रांसफर, जो आपको एसेट्स ट्रांसफर हुई है उसका अमाउंट, एंड टोटल इन्वेस्टमेंट और ट्रांसफर मतलब जो आपने टोटल एसेट्स इन्वेस्ट करी है वो, और जो एसेट्स आपने ट्रांसफर करी है वो। ओके, यस। देन नेक्स्ट इज income from assets transferred to the son's wife. If a person, if an individual transfer any assets to the son's wife, अपने बेटे की वाइफ को अगर कोई इंडिविजुअल कोई एसेट्स ट्रांसफर करता है विदाउट एनी एडवोकेट कंसिडरेशन, देन इनकम अराइजेस फ्रॉम सच एसेट्स विल बी क्लब्ड इन द हेड ऑफ ट्रांसफर। तो जिस इंडिविजुअल ने ट्रांसफर किया है उसी के हाथ में टैक्सेबल होगी, ना कि जो सन की वाइफ है, बेटे की वाइफ है, उसके हेड में टैक्सेबल। ओके,
इनकम फ्रॉम एसेट्स ट्रांसफर टू एनी पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस और सन्स। अगर आपने क्या किया है, किसी एक पर्सन को एसेट्स ट्रांसफर कर दिया है और उसका बेनिफिट किसको मिलेगा, आपके स्पाउस को मिलेगा या आपकी वाइफ को। क्योंकि देखो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या बोला है कि अगर आप किसी पर्सन को एसेट्स ट्रांसफर कर देते हो तो उससे जो इनकम होगी वो आप ही के हाथ में टैक्सेबल होगी, क्योंकि आपने टैक्स चोरी करने के पर्पज से उसको ट्रांसफर किया है, कोई एडुकेट कंसिडरेशन उससे नहीं लिया है। तो अब लोगों ने फिर और तरीके निकाले चोरी करने के, क्या किए कि एसेट्स ट्रांसफर कर तो नहीं दूसरे पर्सन को, लेकिन उनको बोला कि आप इनकम सीधा सीधा मेरे को मत दो, या तो मेरे स्पाउस को दे दो या मेरे बेटे की वाइफ को दे दो, या तो मेरी वाइफ को दे दो या तो मेरे बेटे की वाइफ को दे दो। ओके, उससे क्या होगा कि मैं टैक्स से बच जाऊंगा, क्योंकि आपने मेरे को तो ट्रांसफर करी ही इनकम, तो मैं कहीं ना कहीं टैक्स से बच जाऊंगा। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसका भी एक सोल्यूशन निकाल दिया, दैट इज इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर टू एनी पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस एंड सन्स वाइफ विल बी क्लब्ड इन ट्रांसफर। तो ऐसे इनकम भी ट्रांसफर जो करेगा इनकम, उसके इनकम उसके हैंडलिंग की टैक्सेबल। ओके, देन नेक्स्ट इज क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड। तो all the income of minor child will be clubbed in the parent's income whose income is greater. It means between mother and father whose income will be higher, income of minor will be clubbed in that parent. तो अगर आपके माइनर चाइल्ड की जो भी इनकम होगी, क्योंकि माइनर्स पे टैक्स नहीं लगता है, ओके, तो माइनर चाइल्ड की जो भी इनकम होगी वो पेरेंट्स के हाथों में टैक्सेबल होगी। पेरेंट्स में किसके हाथ में टैक्सेबल होगी, मदर या फादर के लिए। तो इन दोनों में से जिनकी इनकम ज्यादा है, जिनकी इनकम ज्यादा है उसके हाथ में ये इनकम टैक्सेबल। अब इसके भी कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन विल बी given to parents to the extent maximum of rupees 1500 for each manager. So the exemption today, this is not exception, exemption. तो यहाँ पे आपको एक exemption दी जाएगी rupees 1500 for each manager। आपको exemption मिलेगी 1500। सपोज आपके जो आपका जो बेटा है उसको पूरे साल में, जो आपका माइनर चाइल्ड है उसको पूरे साल में 7500 की इनकम है, वो माइनर है, तो वो किसके हाथ में टैक्सेबल होगी, सपोज उसके फादर के हाथ में टैक्सेबल होगी 7500, लेकिन उसमें से 1500 का आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। 1500 का एग्जेम्पशन मिलेगा तो टोटल इनकम कितनी टैक्सेबल होगी, ओनली 6000। तो 6000 के पेरेंट्स के हाथ में टैक्सेबल होगी, 1500 फॉर एवरी मैनेजर, ईच मैनेजर। अगर 2 चाइल्ड है तो 3000 की एग्जेम्पशन, 3 है तो 7500 की एग्जेम्पशन, 4 है तो 6000 की, 4500 6000 की एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगी। But there is some exception of this rule. To see what is the exception. In the following cases, income of a minor child will not be clubbed in the income of the parents. कुछ एक सिचुएशन है जहाँ आपकी माइनर चाइल्ड की इनकम आपके पेरेंट्स के हाथ में टैक्सेबल नहीं है। कौन कौन से केस में? चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम एनी डिसेबिलिटी लाइक फिजिकल डिसेबिलिटी, टोटली ब्लाइंड एक्सेट्रा, इनकम अर्न्ड बाय चाइल्ड बाय स्किल एंड टैलेंट। तो पहला कंडीशन तो क्या, अगर आपका चाइल्ड किसी सीरियस प्रॉब्लम से, फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से या ब्लाइंड है, इस वजह से कोई इनकम मिल रही है, कोई एक डोनेशन मिल रहा है, तो ऐसी बात लाइक कोई इनकम होती है तो टैक्स विल नॉट बी क्लबिंग योर है, ओके, वो इनकम टैक्सेबल नहीं है। अगर ऐसी इनकम किस तो कैसे अर्न होगी आपके चाइल्ड को, बाय हिज स्किल्स, टैलेंट एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज। तो ऐसी इनकम उस जो चाइल्ड है उसने अपने स्किल से, अपने टैलेंट से और अपने स्पेशलाइज्ड नॉलेज की वजह से अगर अर्न करी है, इन दैट केस क्लबिंग इनकम विल नॉट बी अप्लाई करनी, तब भी ये इनकम टैक्सेबल नहीं होगी आपके हाथ, पेरेंट्स के हाथ में टैक्सेबल नहीं। ओके, next is income from self-acquired property converted into joint family property. If any individual member of HUF converts self-occupied property in HUF property, then income derived by such converted property will be clubbed in the income of transferor, that is individual. So, अगर कोई इंडिविजुअल जो HUF का मेंबर है वो अपनी एसेट्स को कन्वर्ट कर देता है, अपनी सेल्फ ऑक्यूपाइड एसेट्स को कन्वर्ट कर देता है HUF की प्रॉपर्टी में, तो उस कंडीशन में income derived by such converted property will be clubbed in the income of transferor. तो ऐसी इनकम की, ऐसी कन्वर्टेड प्रॉपर्टी से जो इनकम होगी वो भी किसके हैंड में टैक्सेबल होगी, ट्रांसफरर के हाथ। आप एक इंडिविजुअल है, एक मेंबर है HUF के, आपने अपनी पर्सनल जो आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड एसेट की प्रॉपर्टी थी उसको क्या किया, HUF की प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करके, ताकि आपके ऊपर टैक्स रेट कम लगे, जबकि HUF की टैक्स रेट भी कम है। ओके, तो उस कंडीशन में भी वो एसेट का जो इनकम होगी तो इंडिविजुअल के हैंड में टैक्सेबल होगी, ना कि HUF की। ऑल्दो वो अब HUF की प्रॉपर्टी हो गई है, लेकिन आपने ऐसा किया क्यों, अपना टैक्स बचाने के पर्पज से, तो सच इनकम विल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ इंडिविजुअल। ओके, then last one is liability of
even though income arising from the transfer of assets is clubbed in the end of transfer. But tax on such income may also be demanded for transfer. That means transfer does not pay the tax, then income tax department can collect this tax from transfer. देखिए ऑल लो हर प्रोविजन में हमने पढ़ा कि इनकम किसके हैंड में टैक्सेबल होगी, जो ट्रांसफर करेगा उसके लिए, मतलब ट्रांसफर के हैंड में इनकम टैक्सेबल होगी. ओके, पर टैक्सेबल तो इनकम ट्रांसफर के हैंड में होगी. कैलकुलेशन किसके ऊपर हुई, इनकम टैक्स की ट्रांसफर की इनकम के ऊपर. पर ट्रांसफर अगर पे करने में एबल नहीं है और पे नहीं करता है, अगर ट्रांसफर को बार बार नोटिस दिए जाने से इनकम टैक्स पे नहीं करता है, तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किससे लेगी, वो किससे वसूल करेगी, वो किससे डिमांड कर सकती है वो टैक्स, ट्रांसफर से, जिसको वो इनकम ट्रांसफर करेगी, तो ट्रांसफर से वो इनकम डिमांड कर सकती है और कलेक्ट कर सकती है फ्रॉम ट्रांसफर. ओके, so this is all about your clubbing of income. So that's it for today. In next lecture